नेक्स्ट रिजल्ट, हमने कल क्या बात करी थी, एक बार उसे रिपीट कर लेते हैं. ओके, देन नेक्स्ट रिजल्ट. हाँ रुकिए एक मिनट, अभी आवाज में बोल नहीं रहा हूँ इसलिए नहीं आ रहा. ओके, हमने बात की थी बेसिस के ऊपर. We defined what is a base and we gave an alternate definition of basis. We showed that these two definitions are equivalent. So first definition was, we have a subcollection of the topology, okay, subfamily of the topology, call it B, funny B. We say this funny B is base if every member of the topology tau can be expressed as the union of some members of this funny B. So that was the definition of basis. And then we proved several results and we gave a characterization of basis, and from there we analyze that we have one more definition of basis, which says that if we have a set X and we have a topology on, okay, so okay, we have a set and a basis for some topology on it. So in previous case we have a topology in hand. Here we are saying basis is so a set is a basis for some topology, okay, if this B is a collection of subsets of X. Number first, it satisfies this condition: X is union of members of B. Or in other words, for each element of X, capital X, we have a member capital B in this funny B such that X is an element of it. Okay. Second thing is, whenever two elements of funny B intersect, okay, whenever they intersect, there exists another element B3 of this funny B which contains in the intersection of B1 and B2. This was the definition. Then we computed several things. We gave a lower limit topology to R. Then we gave at the end a K topology to R. Okay. So now I'll give you a result which compares two topologies. Okay. So let me state it. So as I said, this result will compare two topologies. So take two topologies on a set X, let tau and tau dash be two topologies on a set X generated by this honey B. So generated by two bases, say B and B dash, by the basis B and B dash respectively. Okay. Then the following are equivalent. Equivalent means this is an if and only if condition. Okay. Tau dash is finer than tau. Okay. If and only if this is for every B in funny B and for every X in this capital B, there exists B dash in funny B dash such that
x b dash and is contained in. So let me first give you a consequence of this result. Then we will see its proof. Okay. So how will we use this result to show two topologies on a set are comparable and one of them is finer than the other? Okay. So let us see this. Okay, so first read this for okay, take 15-20 minutes, read this and understand this. So what we have two topologies, tau and tau dash on a set X. Okay, this B is base of tau, B dash is base for tau dash. So when I say generated by the base, it means this tau is the smallest topology containing this set, this B. Okay, and tau dash is the smallest topology containing B dash. Okay, this is the meaning of generated by. If B is a base for tau, then it is generated by B. Okay, then what we are saying, we are claiming that if tau dash is finer than tau, then this happens. Then, okay, so let us see the meaning of, what is the meaning of finer? Can anyone tell me what is the meaning? So what was the definition of finer? Or so if you do not know finer, you may replace it by stronger. So do you remember we have given a definition for weaker or coarser and stronger and finer? Do you remember this? याद है आपको? Yes, yes sir. हाँ, क्या था बताइए? सर टी डैश इज फाइनल होगा अगर वो टी डैश जो है टी में कंटेन करता है तो। हाँ, टी डैश जो है टी में कंटेन, थोड़ा सा देखिए ये हल्का सा कुछ दिक्कत है, अभी देखते हैं इसको। इसमें आप थोड़ा सा चेंज करते हैं। अभी देखिए ये फाइनर और स्ट्रॉन्गर का मीनिंग देखते हैं। चलो मैं पहले रिकॉल कर देता हूँ, उसके बाद एक इसका कंसिक्वेंस देखेंगे, फिर इसको प्रूव करेंगे। ठीक है, मेरे पास दो टोपोलॉजी है, टाउ एंड टाउ डैश। ओके, व्हेन आई से टाउ डैश इज फाइनर देन टाउ, दिस मींस टाउ इज वीकर देन टाउ डैश। ओके, so this means this tau is contained in tau dash। का मतलब क्या है, जो भी ओपन सेट टाउ में है वो सारे के सारे ओपन सेट टाउ डैश में होंगे। ठीक है, करेक्ट? इज दिस करेक्ट? ओके, सो अब हम थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल के तौर पर देखते हैं। हम एक सेट लेते हैं x जो कि जिसमें केवल 2 पॉइंट है, 1 और 2। ठीक है, आज बहुत टेक हो रही है। सबके साथ ऐसा है क्या? नो सर, सबको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है क्या? सभी के साथ ऐसा है? आवाज आ रही है। क्लियर तो आ रही है, फिर क्या दिक्कत है भैया? आप नेटवर्क में, ठीक नेटवर्क में जाइए। तो टेक x इक्वल टू 1,2 एंड लेट अस टेक टाउ 1 इक्वल टू, अब यहाँ पर मैं टाउ और टाउ डैश को टाउ 1 टाउ 2 से रिप्लेस कर सकता हूँ। आप ये देखिए, ओके, टाउ 1 इक्वल टू एम्प्टी x1 एंड टाउ नॉट भी ले लेते हैं, टाउ नॉट इज एम्प्टी x, tau 2 is empty
x2 tau 3 is empty x1 2. ओके, सो इसमें हम देखते कौन सा किससे वीकर है, कौन स्ट्रॉन्गर है. ठीक है, लेट अस कंपेयर फर्स्ट टाउ नॉट एंड टाउ 2. टाउ नॉट और टाउ 1 में, सॉरी, टाउ नॉट एंड टाउ 1 में कौन वीकर है, कौन स्ट्रॉन्गर है, आप बताइए. कोई भी. टाउ नॉट इज वीकर देन टाउ 2. टाउ नॉट वीकर है. ओके, टाउ नॉट क्योंकि इसके हर एक ओपन सेट टाउ 1 में है और टाउ 1 में कुछ और भी ओपन सेट्स हैं. अब इसको फाइनर कहने का क्या मीनिंग, इसको देखते हैं. फाइनर क्यों कहते हैं इसको? ठीक है, स्ट्रॉन्गर कहना तो ठीक था, फाइनर क्यों कह रहे हैं? अभी आप देखेंगे ये दो सेट हैं टाउ नॉट में. टाउ 1 में एक एक्स्ट्रा सेट है, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है. ओके, जो कि इसको ऐसे देखते हैं. मान लीजिए आपके पास एक ट्रक था, आपकी बुक में देखेंगे इस तरह से एनालॉजी दी है. एक ट्रक है जिसमें कुछ पत्थर रखे हुए हैं. ठीक है, ओके, इन पत्थर से टोपोलॉजी बन रही है. करेक्ट. अब आपने क्या किया, इन पत्थर को तोड़ दिया, सारे पत्थरों को आपने क्रश कर दिया. तो अब आपके पास छोटे छोटे टुकड़े हैं, बहुत सारे टुकड़े हैं. ठीक, बहुत टुकड़े हैं. अभी क्योंकि ये टोपोलॉजी था, ये भी टोपोलॉजी, ये टाउ टाउ क्या था, ये मान लो टाउ 1 है, टाउ है, और ये टाउ डैश है. आपको मालूम है टाउ डैश में जो भी एलिमेंट है उनका यूनियन भी वहां पर होगा. तो मान लो इस पत्थर को तोड़ने के बाद आपको ये वाला पार्ट मिलता है. ठीक है, ये वाले जो छोटे छोटे टुकड़े ये मिलते हैं. आप इन सब का यूनियन करेंगे तो फिर से ये पत्थर मिलेगा आपको. ओके, लेकिन आप देखते क्या है कि यहाँ के ओपन सेट यहाँ पर है, लेकिन यहाँ जो दूसरे टाउ डैश में जो ओपन सेट है, टाउ डैश में जो ओपन सेट है वो और फाइनर है, वो और छोटे छोटे ओपन सेट्स हैं जिनसे मिलके बड़े ओपन सेट बन जाएंगे. ठीक है, इसीलिए हम इसका नाम फाइनर बोलते हैं. और फाइन ओपन सेट्स है मींस बहुत छोटे छोटे ओपन सेट्स है. ठीक है, इज दिस ओके? यस सर. हाँ, अभी बताइए कि इनमें सबसे फाइनेस्ट टोपोलॉजी कौन सी, फाइनेस्ट टोपोलॉजी जो स्ट्रॉन्गेस्ट है? टाउ 3. टाउ 3. टाउ नॉट. ओके, टाउ नॉट कैसे फाइनल हो गया भैया? अभी तो बताया ना हमने एक्स को क्रश कर दिया. एक्स को ब्रेक कर देंगे तो हम उसके छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाएगा ना. एक्स को जब ब्रेक करोगे तो 1 और 2 भी आ जाएगा वहां पर, और उसका यूनियन तो होगा ही होगा क्योंकि वो टोपोलॉजी है. ठीक है, आई बात समझ में? हाँ बोलिए. यस सर. टाउ 1 और टाउ 2 में कौन सा होगा? हाँ, अब ये बताइए टाउ 1 और टाउ 2 में कौन सा होगा? तो हमने एक और चीज पढ़ी थी, हमने बोला था कि हम दो टोपोलॉजी को कंपेरेबल कहेंगे जब उनमें से एक दूसरे से स्ट्रांग हो और एक वीकर हो. अगर वो ऐसा नहीं होता तो हम उसे नॉट कंपेरेबल कहेंगे. ये टाउ 1 एंड टाउ 2 आर नॉट कंपेरेबल. टाउ 1 एंड टाउ 2 आर नॉट comparable. Do you see this? Is this okay? Correct or not? यस सर, ओके है. हाँ, अभी देखते हैं ये जो यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया, ये इस रिजल्ट से कैसे निकलेगा. अगर हम यहाँ पर तो देख के बता रहे हैं, ये देखिए टाउ डैश इज फाइनर देन टाउ.
बोल रहे थे टाउ वन इज फाइनर देन टाउ नॉट, टाउ वन इज फाइनर देन टाउ नॉट। ओके, ये हमने बोला था। देखो यहाँ पर क्या है, टाउ नॉट के लिए हम बी ले रहे हैं बेसिस, और टाउ वन के लिए बेसिस लेते हैं B1। ओके, सो टाउ नॉट की बेसिस कोई बता पाएगा क्या है? एक्स। टाउ B1 की B1 क्या होगा टाउ वन की बेसिस? इस बारे हमने पहले बात करी है, कल ही बात की थी। तो इसकी बेसिस होगी एक्स एंड 1। ओके, इज दिस करेक्ट? क्या ये ठीक है? यस सर। ओके, अभी देखते हैं। ओके, सो कंडीशन 2 says that for every b in B, तो यहाँ का ओपन सेट क्या है? या तो एम्प्टी सेट है। ओके, यहाँ पर अभी हम B में क्या ले रहे हैं? B में केवल x ले रहे हैं। So for every b in B, so here we have x, okay, and for every x in B, so every element x in B, so take, so we in x we have two elements, one in x and two in x, इन दोनों के लिए कुछ होना चाहिए। Then there exists b dash in B such that this happens. For this there exists, see, here is one open set, here is one B. This one belongs to this set and it is contained in wait a minute. No. This is contained in B. Okay, so what is our B? B is X. Okay, यहाँ पर हमने ये जो स्मॉल b लिखा है, कंडीशन 2 देखिए, ठीक है, यहाँ पर हम स्मॉल b को x लेके चल रहे हैं। और ये हमारा जो 1 आया ये है b डैश। तो फॉर एवरी b एंड फॉर एवरी x, सो अभी हम केवल 1 के लिए किया है, अभी 2 के लिए देखते हैं। 1 के लिए हमें b डैश 1 मिला, 2 के लिए क्या मिलेगा देखते हैं। फॉर दिस 2 we find an element b dash, so take b dash equal to x, take b dash equal to x. Okay, correct? Then what you get is, so for this b dash 2 belongs to x, correct? 2 is in this set. इसको मैं ये क्यों लिख रहा हूँ बार बार? 2 is in x, and you know every set is a subset of itself, so x is contained in x. So this x represents b dash and this x represents b. Okay, now let us write it again and see, use this theorem in Euclidean topology of R2. So I gave you an exercise, okay, where x was R2 and we have two topologies, tau and say tau dash। चाय पिया जाए। अरे भैया कौन है? कहाँ रखी कौन है? जा रही है? शिवम, अरे भैया शिवम बंद कर लीजिए भाई, अपने को म्यूट कर लीजिए। हेलो,
Okay, so we have two topologies, tau and tau dash. Tau is generated by B. What is B? B is say collection of all circular region. Okay, B is collection of all circular region. Okay, and take B dash, this is collection of all rectangular region. On R2, on R2. Okay, तो यहां पर देखते हैं कौन सी टोपोलॉजी किस पर कंटेन होगी, मींस कौन सी टोपोलॉजी स्ट्रॉन्गर है, कौन सी वीकर है. ठीक है, क्या कोई बता सकता है कि कौन सी स्ट्रॉन्गर होगी, कौन सी वीकर होगी? हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज आ रही है या नहीं? यस सर, यस सर. आप सर कुछ कैसे गेस कर सकते कंपेयर हैं? किया जा सकता है सर? नहीं समझ में आ रहा सर. अच्छा, सर वो अभी आपको, सर्कल है, वो रेक्टेंगल है तो. हाँ आपको एक मैंने लेमा अभी एक रिजल्ट दिया ना. अच्छा, फिर से मैं रिजल्ट लिख रहा हूँ यहाँ पर, फिर से रिजल्ट लिख देते हैं. यहाँ पर था मेरे पास दो टोपोलॉजीज थी, टाउ एंड टाउ डैश. ओके, टाउ के लिए बेसिस थी बी, टाउ डैश के लिए बेसिस थी बी डैश. ओके, ये बेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ. ऑन सेम सेट. ठीक है, यहाँ पर टाउ के लिए ये बी है और टाउ डैश के लिए हमारे पास बी डैश है. ठीक है, मैं बोल रहा हूँ नंबर 1, टाउ डैश इज फाइनर देन टाउ. ओके, और सेकंड है, these are if and only if condition, so this implies this and 1 implies 2, 2 implies 1. Second is for every b in basis funny b and for every element, for every element. अभी दो चीजें देखो, यहां पर ये जो बी है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ओपन सेट को, क्योंकि ये फनी बी का एलिमेंट है. ये जो एक्स है ये इस ओपन सेट का एलिमेंट है. ये एक्स का एलिमेंट. ये जो बी है ये एक्स का सबसेट है जो कि इस फनी बी के अंदर है, और ये जो स्मॉल एक्स है ये कैपिटल एक्स का एलिमेंट है जो कि इस सबसेट बी में बिलोंग करता है. ओके, there exists another subset P dash which is open in tau dash, means it lies in this topology, in this base, such that x in B dash contained in B. अब बता सकते हैं इसकी मदद से, ये इसको मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूं जिससे कि दोनों एक ही स्क्रीन आ जाए. कुछ गैस कर सकते हैं? ओके, कोई बात नहीं, इसको हम बनाते, बहुत इजी सा है. ये R2 है. ओके, करेक्ट. आपने क्या बोला कि थोड़ी देर के लिए हम पहले देखते हैं कि टाउ डैश फाइनर, मान लो टाउ डैश फाइनर होता है तो ऐसा दूसरा कंडीशन होल्ड करनी चाहिए. ओके, टाउ डैश है रेक्टेंगुलर रीजन वाला, टाउ है सर्कुलर रीजन वाला. ओके, करेक्ट. यस सर. सेकंड कंडीशन कहती है फॉर एवरी बी इन
for every bee in honey bee, तो फनी बी है सर्कुलर रीजन। तो आपने एक सर्कुलर रीजन लेना है, एक ओपन डिस्क लेनी है। ओके, ये एक ओपन डिस्क है, ये बी है हमारे पास, ठीक है, ये जो बी है। एंड फॉर एवरी एलिमेंट एक्स इन बी, अब इस एक्स में, इस बी में आपने कोई एक एलिमेंट उठाना है, एक एक्स उठाना है, ये एक्स है, ठीक है, ये किसी भी के लिए ट्रू है, हम आर्बिट्ररी कोई एलिमेंट उठाते हैं। ये कहता है कि यहां पर एक रेक्टेंगुलर रीजन होना चाहिए। ओके, हम जानते हैं कि हम सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगुलर रीजन बना सकते हैं, बना दिया, इसके बाहर नहीं जाना चाहिए। ओके, एक मिनट, ये रेक्टेंगुलर रीजन एक्स को कंटेन करता है, देख रहे हैं आप, दिस इज बी डैश, this rectangular region is b dash। okay, is this correct? तो आपको क्या मिला? यस सर। for every b in this b and for every x in b, here exists b dash in b dash such that x in b dash and it is contained in b। तो यहां से आपने क्या क्या मिला? दिस implies this tau dash is finer than tau। tau dash is finer than tau। मिला या नहीं मिला? Is it correct or not? Yes sir। अभी दूसरा देखते हैं। अब ये सेम काम हम करेंगे, देखिए इसको फिर से याद रखिए, इस चीज को याद रखिए, अपने साथ में रखिए, ठीक है। अब हम उल्टा चलते हैं। फॉर एवरी बी इन, अभी ये बी वाला जो है हम इसको लेते हैं रेक्टेंगुलर रीजन वाला, ठीक है। आपने एक रेक्टेंगुलर रीजन लिया, अपने कैसा भी रेक्टेंगुलर रीजन ले लो, ऐसा, ये रेक्टेंगुलर रीजन, ठीक है, ओपन है, ध्यान रखिए ये ओपन है। तो ये रेक्टेंगुलर रीजन है, कुछ दूसरा भी बना सकते हैं, ऐसा भी बना सकते हैं, ये भी रेक्टेंगुलर, कोई एक दोनों में से आप ले लीजिए, मैं दोनों को ले दिखा रहा हूं। आपने क्या करना है, एक कोई भी आर्बिट्री पॉइंट उठाइए, फॉर एवरी एलिमेंट, एनी आर्बिट्री एलिमेंट, टेक दिस, और यू में टेक, यहाँ छोटा सा, यहाँ भी किनारे में भी ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये ओपन है, आपको मालूम है इसके अंदर एक और सेट मिलेगा जो कि ये पहले वाले के अंदर होगा, ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, आपको एक बी डैश ढूंढना। अभी बी डैश हमारा कौन सा वाला हो गया? सर्कुलर रीजन वाला, ठीक है। इस वाले के लिए आपको ये बी डैश मिलता है, देखिए कौन सा, ये छोटा सा बी डैश मिला, ठीक है। ये इस वाले पॉइंट के लिए बड़ा बी डैश भी मिल सकता है आपको, छोटा भी मिल सकता है, सर्कुलर होना चाहिए बस। आई बात समझ में? यहां पर देखते, मान लो ये वाला पॉइंट होता आपके पास, तो आपको क्या मिला? एक बड़ा सा सर्कुलर रीजन मिला, और अगर यही पॉइंट ये किनारे में होता तो आपको एक छोटा सा सर्कुलर रीजन मिलता, ठीक है। बहुत बहुत पतला मैंने बनाया है, ये सर्कुलर रीजन मिलता, ठीक है, जो कि क्या काम कर रहा है, लिख देते हैं फॉर एवरी, अभी हम इसके हिसाब से चल रहे हैं, बी डैश के हिसाब से, फॉर एवरी बी डैश इन बी डैश एंड फॉर एक्स इन बी डैश, देयर एग्जिस्ट दिस सर्कुलर रीजन बी in B
such that X in B and it is contained in B dash. Okay? तो यहां से आपको क्या मिला? This implies tau dash is weaker than tau, or tau is finer than tau. Tau is finer than tau dash. अब आपके पास दो चीजें, tau dash is weaker than tau and tau is weaker than tau dash. This implies both topologies are same, both are equivalent. Okay? Correct? Do you see this? Is it okay? Hello? ठीक है ना? यस अच्छा। सर, ओके है। अब हाँ, अभी आपके लिए एक होमवर्क है। कल हमने ये तो थी बात कहाँ पर, R2 के ऊपर थी, ठीक है। अब हमने R में बात करी थी। आप कोई बता सकता है R में हमने क्या क्या टोपोलॉजी दे चुके हैं? हम X इक्वल टू R है, R के ऊपर क्या क्या टोपोलॉजी हम बना चुके हैं? एक तो यूजुअल टोपोलॉजी थी, याद है? तो मैं कहां पर था? मैं बोल रहा था कि हमने R में सेट ऑफ रियल नंबर्स में कुछ टोपोलॉजीज हमने कंस्ट्रक्ट की। वो कौन कौन सी थी, ये कोई बताएगा? यूजुअल टोपोलॉजी, लोअर लिमिट टोपोलॉजी। हाँ, यूजुअल टोपोलॉजी कौन सी थी बताइए? जो यूक्लिडियन टोपोलॉजी थी। हाँ, इसके लिए बेस क्या था? बेस कुछ बताया था हमने, इसको BU बोल देता हूँ। सिंगलटन सेट। हाँ, सॉरी सर, आर नहीं, अरे भैया देखो, बहुत सारी टोपोलॉजी हो सकती है। नंबर फर्स्ट इंडिस्क्रीट टोपोलॉजी जिसमें एम्प्टी सेट और R, ओके। जी फिर सर। उसके बाद डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो सकती है जिसमें एम्प्टी सेट होगा, R होंगे और इसके सारे सबसेट। जी सर। इसको मैं लिख देता हूँ, ऐसे लिख देता हूँ, ओके। पावर सेट ऑफ R, सेट ऑफ ऑल सबसेट, ओके। ये एम्प्टी, ये डिस्क्रीट हो गया, ठीक है। इसमें इसका जो बेस होगा वो होंगे ऑल सिंगलटन सेट, सेट ऑफ ऑल सिंगलटन सेट, ओके। ऑल सिंगलटन सेट्स। तो ये दो टोपोलॉजी तो हमेशा है, सभी के पास है। ये दो टोपोलॉजी तो सबके पास है। इनके अलावा टोपोलॉजी हमने दी थी, जिसको एक यूजुअल टोपोलॉजी था, जिसमें मैं BU लिख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए से। ये थे ऑल ओपन इंटरवल्स, सेट ऑफ ऑल ओपन इंटरवल्स, ओके। ये इसका बेसिस था। इस बेसिस से जनरेट होने वाली टोपोलॉजी को हम यूजुअल टोपोलॉजी कहते थे। देन लोअर लिमिट टोपोलॉजी थी, जिसमें इस तरह के ओपन इंटरवल, सॉरी सेमी ओपन इंटरवल्स थे, ओके। A and B बोथ रियल नंबर। आप अपर लिमिट टोपोलॉजी भी दे सकते हैं। अपर लिमिट, मैं इसको अप कह देता हूँ, मैं क्योंकि ऊपर U लिखा है, तो अपर लिमिट टोपोलॉजी। इसमें आपके पास A, B इस फॉर्म के इंटरवल्स हो सकते हैं, बेस, ओके। देन हमने K टोपोलॉजी बोला था कल, आपको याद है? टोपोलॉजी में K जहां पर क्या, कौन सा सेट था? K इज दिस सेट 1/n where n is a positive integer, okay, and Bk is this set. This is G subset of R where G is either G equal to some open interval or G equal to open interval minus K, where A and B are real numbers and A is less than B. So इनसे जनरेट होने वाली टोपोलॉजी को हम K टोपोलॉजी कहते हैं। इससे जनरेट होने वाली टोपोलॉजी को हम अपर लिमिट टोपोलॉजी कहते हैं। BL से जनरेट होने वाली टोपोलॉजी को हम लोअर लिमिट टोपोलॉजी कहते हैं। और ये जो BU था, इससे जनरेट होने वाली टोपोलॉजी को हम कहते हैं
यूजुअल टोपोलॉजी, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी और दी यूक्लिडियन टोपोलॉजी। अभी आपके पास, अब मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूं जो आप सब जानते हैं। ये टोपोलॉजी वीकेस्ट टोपोलॉजी, दी वीकेस्ट टोपोलॉजी। ओके, और ये इंडिस्क्रीट और ट्रिवियल टोपोलॉजी कहते हैं। ये जो दूसरी टोपोलॉजी डी वाली लिखी जिसे डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं, ये स्ट्रॉन्गेस्ट या फाइनेट टोपोलॉजी है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट टोपोलॉजी और फाइनेस्ट टोपोलॉजी, इससे फाइन कुछ नहीं मिलेगा आपको। अब बात आती है 1 2 3 4, इन चारों के बीच में क्या रिलेशन है? तो कौन फाइनर है, कौन कंपेरेबल है, कौन नहीं है? एक्सरसाइज। और आप लोगों को मैंने बोला है कि ग्रुप में डिस्कस करो, अभी तक तो किसी ने नहीं किया, तो ये वाला पार्ट आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अभी हम बात करते हैं, ये जो हमने रिजल्ट लिखा था उसके प्रूफ की बात करते हैं। प्रूफ बहुत इजी है। हमें मालूम था कि हम कह रहे थे कि टाउ डैश फाइनर होगा और प्रूफ करना था कि फॉर एवरी बेसिस एलिमेंट बी इन फनी बी एंड फॉर एवरी एक्स देयर एग्जिस्ट अ बी डैश। हमें एक ओपन सेट दूसरे में दिखाना था। ठीक है, तो हम पहले एज्यूम करते हैं कि टाउ जो है वो वीकर है टाउ डैश। दिस मींस टाउ डैश इज फाइनर देन टाउ। ओके, और हम एक एलिमेंट एक्स का लेते हैं एक्स से और एक बी लेते हैं इसके बेसिस में, टाउ के बेसिस में, जिसमें कि एक्स बिलोंग करता है। ओके, एक्स इसमें बिलोंग करता है। अभी हमने बी डैश में से एक इस टाउ डैश के बेसिस में से एक बी डैश निकालना है और पता करना है जिसमें कि बी हो। ओके, अभी देखो ध्यान से, बहुत सिंपल सी बात है। ये जो बी है, ये बी कहां पर बिलोंग करता है? टाउ में तो बिलोंग करता ही करता है, क्योंकि ये एक ओपन सेट है टाउ के लिए। ओके, और टाउ डैश जो है वो फाइनर है बोल रहे हैं हम, और ये जो एक्स है ये बिलोंग करता है बी में। अब चूंकि जो ये है ये टाउ डैश का सबसेट है, मींस टाउ डैश का एक एलिमेंट है, यहां से हमें मिला ये जो बी है ये टाउ डैश का एक एलिमेंट है और टाउ डैश इज जनरेटेड बाय बी डैश। ओके, so this means B is open in X tau dash. Okay, this means B is an open set in this topological space, and you know P dash is a basis of tau dash. Okay, so जो टाउ डैश के जो भी एलिमेंट होंगे वो बी डैश के एलिमेंट्स के यूनियन के फॉर्म में होंगे, है कि नहीं? दिस बी कैन बी रिटन एज ए यूनियन ऑफ, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, बी आई डैश लिख देता हूं, बी आई डैश, वेयर बी आई डैश बिलोंग्स टू दिस बी डैश। करेक्ट? अब ये जो x था ये किसी एक, ये b में था, x belongs to b and b can be written as union of bi dash. This means x, this means there exists some j, okay, such that x in bj dash and this bj dash contained in b, और ये जो bj dash था ये b dash का एलिमेंट तो है ही। Okay, is this correct or not? Do you understand this? Hello? Yes. ये सही है, एकदम क्लियर है? किसी को कोई डाउट इसमें? No, sir. देखो ये कोई कैलकुलेशन वाला पार्ट नहीं, केवल लॉजिक है। कहां से रिपीट करना बताइए, किधर से रिपीट करो, कौन से पॉइंट से रिपीट करना है बताइए?
अरे किसी ने बोला ना रिपीट करना है, कौन है वो? यस सर। हाँ, आपका नाम? सर नेहा बोल रहा हूँ। नेहा बौद्ध, कहाँ से, कौन से पॉइंट से रिपीट करना है बताइए? सर पूरा एक बार रिपीट कर दीजिए प्लीज। अच्छा, आप ये जी। बताइए हमें प्रूफ क्या करना है, चलिए ये बताइए हमें, हम प्रूफ क्या करना चाहते हैं? सर कि टाउ डैश जो है फाइनल है देन टाउ सी। ये हम मान के चल रहे हैं इसको, यस सर। हमें ये तो हम मान के चल रहे हैं, एज्यूम दिस, ये हमने एज्यूम किया, हमें प्रूफ क्या करना है एग्जैक्टली ये बताइए पहले, हमारा गोल क्या है? अब जब तक हमें गोल नहीं पता होगा हम वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे ना, हमें हमारा गोल दिखना तो चाहिए। तो हमारा गोल क्या है, एम क्या है, क्या प्रूफ करना है हमें? हेलो, सर मुझे समझ तो आ सर, हमें प्रूफ ये करना है कि अगर हम कोई टाउ डैश में कोई बी ले रहे हैं तो टाउ में उसमें कोई ऐसा एक्स टा- मिलेगा। ये सर टाउ में जो कोई नहीं नहीं बी ले रहा है तो उसमें कोई नहीं ऐसा नहीं एक्स आप मिलेगा। नहीं, अरे आप ये इसको क्वांटिफायर के साथ आप बहुत मिस्टेक कर रहे हैं। फिर से मैं बोल रहा हूँ, देखिए टाउ का बेसिस बी है, टाउ की बेसिस बी है, ओके, और बी डैश जो है वो बेसिस है टाउ डैश का, करेक्ट? ठीक है, ओके हमें सर। प्रूव करना है कि अगर, देखो हम मान रहे हैं कि ये है इफ एंड ओनली इफ, ये जो मैं लिख रहा हूं वो होगा फॉर एवरी, इस बी के सभी एलिमेंट के लिए, मीन सारे बेस के सारे एलिमेंट्स के लिए, ओके, सारे ओपन सेट के लिए बेस के, एंड सारे एलिमेंट के लिए भी के, आप कह रही है कि कोई एक मिलेगा, कोई एक नहीं, सभी के लिए, सबके सबके लिए, ओके, ये फॉर ऑल है, ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो यस सर। सबके लिए, यहाँ पर देखिए ये दो, इसमें कोई एक नहीं कह रहा हूं मैं, सभी कह रहा हूं, फॉर ऑल बी एंड फॉर ऑल एक्स इन बी देयर एग्जिस्ट, अब कोई एक मिलेगा, देयर एग्जिस्ट बी डैश इन बी डैश such that x in b dash and it is contained in b। इसको हमने कैसे किया? हमने कोई एक, अब जब हम फॉर ऑल कहते हैं तो सबको सब तो करेंगे नहीं, हम एक आर्बिट्ररी उठाते हैं, अगर उस आर्बिट्ररी के लिए हो गया तो सभी के लिए हो गया, तो हमने ये एज्यूम किया, एज्यूम tau contained in tau dash and arbitrarily choose a b, okay, so choose a b in b arbitrary, okay, let me write choose b arbitrarily, arbitrary का मतलब जानते हैं? हाँ, रैंडमली चूज, आपने ऐसे ही कुछ उठा लिया, ठीक है, एंड चूज x in b, this is also arbitrary, okay, arbitrary point, दोनों आर्बिट्ररी। तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि इस b को मैंने आर्बिट्ररीली चूज किया तो ये कोई भी b के लिए सही होगा, और इस b में से एक पॉइंट उठा रहा हूं मैं आर्बिट्ररी, ये जो b है ये फनी बी के अंदर है, ये फनी बी किसका बेसिस है? टाउ का, करेक्ट? टाउ किसका, टाउ जो है वो फाइनर, वो वीकर है टाउ डैश से, टाउ डैश, करेक्ट? और Yes. एक्स कहाँ था? इस बी में, ठीक है? तो ये जो बी है वो कहां पर चला गया? बी किसका एलिमेंट है? टाउ डैश का, तो इसको हम लिखते हैं दिस इंप्लाइज बी इज एन ओपन सेट इन दिस टोपोलॉजिकल स्पेस, करेक्ट? यहाँ ठीक है या नहीं है? Yes, sir. निया, क्योंकि
since B dash is base for tau dash, अब B dash जो है वो बेस है tau dash के लिए, तो इसका मतलब बाय डेफिनेशन क्या होना चाहिए? बेस की डेफिनेशन क्या थी कि टोपोलॉजी के हर एक एलिमेंट, या हम कहें टोपोलॉजिकल स्पेस के हर एक ओपन सेट्स किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं? यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बेस। ओके, क्योंकि ये एक ओपन सेट था टोपोलॉजिकल स्पेस का, को मैं लिख सकता हूं यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी डैश, उनका नाम मैं बी आई डैश बोल देता हूं, वेयर आई सम इंडेक्सिंग कमिंग फ्रॉम सम इंडेक्सिंग सेट। तो यहाँ पर जितने बी आई डैश है वो बी डैश के एलिमेंट्स थे। ओके, अब ये जो x था ये तो b का एलिमेंट था, क्योंकि ये जो b है ये यूनियन ऑफ बी आई डैश है, तो ये x किसी न किसी बी आई के अंदर तो होगा ही होगा, है कि नहीं? अगर मैं c को a यूनियन b लिखूं और x बिलोंग टू ये c है फॉर्म का और x यहाँ पर है, तो मैं c को a यूनियन b के फॉर्म में लिख रहा हूँ, ये a है ये b है, तो ये x तो b के अंदर है ना, किसी एक में तो होगा, इसीलिए ये x किसी न किसी bj के अंदर होगा, bj डैश, जो कि यहाँ पर है इस यूनियन के पास है। ओके, और ये कंटेन करता है, हो गया हमारा जो भी क्लेम था। ओके, कोई Yes, दिक्कत sir. किसी को? हाँ, क्या दिक्कत बताओ, और कोई दिक्कत है तो बताइए प्लीज। हाँ, अभी कन्वर्स पार्ट के लिए अब हम सेकंड ये जो असर्शन है उसको मान लेते हैं, ये हम एज्यूम करते हैं कि ऐसा है। ओके, एज्यूम 2। अब आपको क्या करना है, हमें दिखाना है टाउ इज कंटेंट इन टाउ डैश, इसका मतलब कोई भी ओपन आप टाउ से ले रहे हैं वो टाउ डैश के अंदर होना चाहिए। अगर जी टाउ के अंदर है तो हमें दिखाना है कि जी टाउ डैश के अंदर है। ओके, ऐसा हमें दिखाना है। So take a g in tau arbitrarily chosen and x in g। ओके, अभी एक बात बताइए, ये जो g था वो ओपन सेट है, किसी टाउ में है वो ओपन सेट है, और टाउ का बेसिस क्या है? हेलो, टाउ का बेस क्या है? हेलो, Yes, sir. Yes, Tau is sir. B. हाँ b है, b इज अ बेस फॉर टाउ। तो हम क्या जानते हैं बाय डेफिनेशन, बेस की डेफिनेशन से क्या जानते हैं ये b को कैसा होगा? व्हाट इज द डेफिनेशन? जो पहली डेफिनेशन हमने बेस की दी थी वो क्या था? Sir, union of open set So of G tau. is the union of members of B. जी इज द यूनियन ऑफ मेंबर्स ऑफ बी। सी को मैं बी आई के मेंबर्स के फॉर्म में लिख सकता हूँ, वेयर बी आई Members आर of कमिंग B. फ्रॉम बी। ओके, कोई दिक्कत? ये जो एक्स है वो कहां पर बिलोंग करता है? जी में, ठीक है। तो मुझे एक बीजे मिलेगा such that x in bj and this bj is contained in g। कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर है ना? इज दिस करेक्ट? अभी हमारे पास क्या मिला? हमारे पास मिला एक बीजे, उसमें एक एक्स है, और जो कंडीशन 2 कहती थी वो कहती थी कि हर एक एलिमेंट जो कि बी से आ रहा है, इस बी से आ रहा है, और हर एक एलिमेंट बीजे का उसके लिए
एक बी जे डैश होगा इन बी डैश such that x in bj dash and it is contained in bj. ऐसा हुआ था. This is by second. हमने माना ना assume 2. कंडीशन 2 ये कहती है, ये कंडीशन 2 है, by condition 2. Okay, and this bj is contained in g. So this implies g is open in tau dash. Okay, is this correct? ये आपने अगर यहाँ पर आपको डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा तो इसको मैं दूसरे फॉर्म में लिख सकता हूँ. इसको आप क्या करें, इसको आप ये लिखें, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम. ये x को अभी नहीं लेते, बाद में लेंगे x. ओके, अगर ये एक था रिजल्ट, इसको अगर आपको समझ में आ गया ठीक है, नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ. So for this g and g in tau we can write g in this form. Okay, now for each x in g, for each x in g, for each x in g there exists bj x. अभी मैं x पर डिपेंडेंट bj ले लेता हूँ. there exists bj x such that x in bj x contained in g. So for this x there exists bj x and there exists bj x x x. ये x पर डिपेंडेंट. यहाँ तक सबको क्लियर होगा कि ये क्या हो रहा है. Since you know g can be done as union of x in g. ठीक है, तो आप क्या करो, इस x को रिप्लेस कर दो bj dash x से. इससे bj dash x. These bj dash x are coming from b dash and these are open in tau dash. Okay, and this g is union of members of p dash. This means this g is open in x tau dash, or we can write this g belongs to tau dash. This implies g. This implies tau contained in tau dash. Okay, so hence tau dash is final. Correct. So now you know how do we prove something is finer, something is weaker, and we have also seen something is not comparable. एक ऐसा भी एग्जांपल देखा था जहां पर कंपेरेबल नहीं है. ओके, अब आपके पास एक्सरसाइज जो मैंने दी है, usual topology in R, topology on R, then lower limit topology, then K topology. So find relation between these three, and you see, prove that tau L and tau K, these are not comparable. Okay, tau L and tau K, they are not comparable. Prove it. Okay, तो मैं एक थोड़ा सा पीछे चल रहा हूँ. मीन्स जो मैं आपको नोट्स देता हूँ वो एक क्लास आगे का हो जाता है. अभी ओके, अब ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे सब बेसिस के बाद. ओके, so I have already uploaded an assignment. Please see that and attempt those questions. Okay, and discuss among yourself. Any question? कोई doubt?